آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ نیوز زی سلام پر۔ شام کے باغیوں کے قبضے والے علاقے ادلیب پر شامی حکومت نے بڑے زمینی حملے کی تیاری کر لی ہے۔ وہیں اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ شمالی شام میں باغیوں کے آخری ٹھکانے پر سرکاری فورسز اور ان کے اتحادیوں کے فضائی حملے کے بعد تقریباً 50,000 افراد اپنا گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق خان شیخون شہر آدھا خالی ہو چکا ہے۔ جو لوگ ادلیب میں موجود ہیں وہ حملے سے بچنے کی ترکیبیں نکال رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی فلاح و بہبود سے متعلق انڈر سیکرٹری پینوس موتیج نے خبردار کیا ہے کہ زمینی حملے کے نتیجے میں اس ملک کو اب تک کا سب سے زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جنگ سے بچنے کے لیے تقریباً 8 لاکھ افراد علاقہ چھوڑ کر باہر نکل آئے ہیں، جو پہلے ہی شام کے مختلف حصوں میں نقل مکانی کر چکے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ 2011 سے شام میں جاری خانہ جنگی میں اب تک 4 لاکھ لوگ مارے جا چکے ہیں، جبکہ 3.5 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ One of the biggest issues is first shelter. Where would the people go? Idlib itself is absolutely packed, is really congested. Water sources, sanitation sources is a cause of major concern with regards to health of the people over there. Imagine it's like having to move and plan for a massive city to be relocated within days to be able to have. So while we're doing our best to make sure that we have everything in place, we hope for the best of a peaceful solution to prevail on the ground, and we continue our preparedness to be able to respond. یمن میں حکومت اور حوثی باغیوں کے درمیان جنیوا ٹاک کی ناکامی کے بعد سعودی عرب اتحاد نے یمن کے بندرگاہی شہر الحدیدہ پر فضائی اور زمینی حملے تیز کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یمن کی سرکاری فوج نے کلو 16 کے علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جس کے بعد 2 صوبوں الحدیدہ اور راجدھانی سنا کے درمیان سپلائی لائن کاٹ دی گئی ہے۔ یمنی فوج نے اسٹریٹجک اہمیت کی حامل الحدیدہ سنا ہائی وے پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جس کی وجہ سے حوثیوں کی رسد رسانی مشکل ہو گئی ہے۔ اس دوران حدیدہ کے وسط میں سعودی عرب اتحاد اور حوثیوں کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس لڑائی میں حوثیوں کے 2 سینئر کمانڈر مارے گئے ہیں۔ وہیں حوثیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس جھڑپ میں کئی سرکاری فوجی بھی مارے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ سنا اور حدیدہ حوثیوں کا مضبوط گڑھ ہے، جس پر کی کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کئی مہینوں سے لڑائی چل رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یمن میں 2015 سے خانہ جنگی جاری ہے، جس میں اب تک کے 10,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں۔ ادھر امریکہ نے یمن میں آئینی حکومت کی بحالی اور حوثیوں کی سرکوبی کے لیے سرگرم عرب اتحاد کی کوششوں کو سراہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ انہوں نے کانگریس کے اجلاس میں اس بات کا دفاع کیا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یمن میں عام شہریوں کی زندگی کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ وہیں امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے بارے میں وزیر خارجہ مائک پومپیو کے موقف سے متفق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عرب اتحاد یمن میں عام شہریوں کے کم سے کم نقصان کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ میٹس نے کہا کہ امریکہ یمن میں لڑائی ختم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی مارٹن گریفتھ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ حالیہ دنوں میں عرب اتحاد کے حملوں میں 40 بچوں سمیت 50 سے زیادہ عام شہری مارے گئے تھے، جس کے بعد سعودی عرب پر حقوق انسانی کی پامالی کے الزامات لگ رہے ہیں۔ On Yemen, we support our partner Saudi Arabia's sovereign right to self-defense, and we recognize the end of the conflict requires a political solution. And both State Department and Department of Defense are working closely with the UN Special Envoy Martin Griffiths in that regard. تو امریکہ نے یمن میں آئینی حکومت کی بحالی اور حوثیوں کی سرکوبی کے لیے سرگرم عرب اتحاد کی کوششوں کو سراہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ انہوں نے کانگریس کے اجلاس میں اس بات کا دفاع کیا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یمن میں عام شہریوں کی زندگی کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ وہیں امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے کہا کہ وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے بارے میں وزیر خارجہ مائک پومپیو کے موقف سے متفق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عرب اتحاد یمن میں عام شہریوں کے کم سے کم نقصان کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ میٹس نے کہا کہ امریکہ یمن میں لڑائی ختم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی مارٹن گریفتھ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ حالیہ دنوں میں عرب اتحاد کے حملوں میں 40 بچوں سمیت 50 سے زیادہ عام شہری مارے گئے تھے، جس کے بعد سعودی عرب پر حقوق انسانی کی پامالی کے الزامات لگ رہے ہیں۔ تو بہت سے
अहम सवाल हैं जिनके जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब, जो कि एक्सपर्ट हैं मिडिल ईस्ट मामलों के। उनसे बात करते हैं। सर, यमन बहरान पर जिनेवा टॉक की नाकामी के बाद अरब इत्तेहाद और हौसियों के बीच जो जंग है वो शुरू हो गई। आखिर हौसी मुज़ाकरात से भागते हुए से क्यों लग रहे हैं? क्या ऐसा है वाकई? देखिए, हौसी जो है वो जो नेगोशिएशन में नहीं गए, उसके पीछे बहुत लंबी एक गहरी साजिश और एक कंस्पायरेसी है, एक खास तरह की ज़हनियत है। वो नेगोशिएशन में इसलिए नहीं गए कि वहां पर ईरान और हिजबुल्लाह जैसे कुव्वतें इन्वॉल्व हैं, उनकी फुसपनाई कर रही हैं जी। एक्सपोज होने के डर से नहीं गए, बुनियादी तौर पर ये है। दूसरी बात ये है कि वो नहीं चाहते कि बात जो है नेगोशिएशन और गुफ्तगू के जरिए तय हो जाए। वो उनके जरिए सऊदी अरबिया पर एक तरह के वार को इम्पोज किया गया है, और जो ईरान का मकसद है हौसी और हिजबुल्लाह को इस्तेमाल करके सीरिया में जिस तरह से कत्ल गारत कराया है, वो ईरान का जो मकसद है पूरे खित्ते को गैर इस्तेहकाम करना है, डीस्टेबलाइज करना है। तो लेकिन अल हुदैदा पर कब्जे के लिए शदीद लड़ाई चल रही है। यमन की सरकारी फौज ने हौसियों की सप्लाई लाइन काट दी है। इससे अल हुदैदा के लोगों पर क्या असर पड़ेगा? वहां पहले से ही हालात खराब है। जी जी, कितनी बात है, मैं इसे इत्तेफाक करता हूं कि वहाँ आम शहरी जो है उनका नुकसान हो रहा है, जानी माल हर तरह का नुकसान हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो लड़ाई का फरीक है, यानी जो पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट है, अगर उसको इस बात की फिक्र नहीं होगी तो बैनुल अक़वामी जो है जो कौमें हैं उनके फिक्र से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हुकूक इंसानी की जो खिलाफ वर्जियां हुई हैं, हुकूक इंसानी की जो खिलाफ वर्जियां हुई, बावजूद इसके अमेरिका ने अरब इत्तेहाद की सराहना की है, कहा कि सऊदी अरब को हर तरह का सेपरेट जारी रहेगा। इसके पीछे क्या सियासत है? वो कहे या ना कहे, सऊदी अरबिया का डायरेक्ट सिक्योरिटी का थ्रेट है, वो करेगा। दूसरी बात यह है कि वो इसलिए नहीं कर रहा है कि वो अपने इजारादारी को नाफिज करे। वहां के तयशुदा प्लान के मुताबिक जब नहीं हो पाया और प्रेसिडेंट हादी के खिलाफ जब इन लोगों ने हथियार उठाया, तब सऊदी अरबिया ने प्रेसिडेंट हादी को, यानी जो यमन की एक लेजिटिमेट हुकूमत है, उसको वो मदद करने के लिए गया है, न कि अपनी इजारादारी को वहां नाफिज करने गया है। ये दोनों में फर्क है। जबकि हकीकत यह है कि वहां के हौसी बागी जो है सऊदी अरबिया के लिए डायरेक्ट थ्रेट बने हुए हैं। वो उनका यमन से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। आप हिस्ट्री उठा के देखें कि यमन के ही जरिए अबरहा गया था, जो मक्के को तबाह कर, जो काबा को तबाह करना चाह रहा था, और यमन के जरिए ही सऊदी अरबिया को और सोमालिया और उस खिते के जो रेड सी का जो ट्रेड रूट है उस पर काबिज होना है, और किसी न किसी तरह से सऊदी अरबिया के खिलाफ एक तरह की नाकाबंदी करना है चारों तरफ से। आज देखिए, दुनिया का वाइड स्टेट है सऊदी अरबिया, जिसके चारों तरफ से फोर्सेज जो है उसके एनिमीज और उसके दुश्मन कुव्वतों की लगी हुई है, और वो लार्जर गैर इस्तेहकाम और बदअमनी की तलाश में है, ताकि किसी न किसी तरह से फिजिकली मदाखलत। बातचीत के लिए आपका शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब, मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट हमारे साथ थे इस वक्त फोन लाइन पर। और स्पेन सऊदी अरब को हथियार सप्लाई करने के मामले में अपने बयान से पलट गया है। स्पेन हुकूमत ने ऐलान किया कि सऊदी अरब को तयशुदा डील के मुताबिक इंतहाई जदीद और ताकतवर बम फरोख्त किए जाएंगे। गुज़िश्ता हफ्ते स्पेन की मौजूदा बाएं बाजू की हुकूमत ने सऊदी को हथियार फरोख्त करने का मुआहदा मनसूख करने का ऐलान किया था। ये दाएं बाजू के खास तौर से हुकूमत के दौर में तय पाया गया था। इस मुआहदे की मनसूखी के वक्त मैड्रिड हुकूमत ने खास तौर से तासुर दिया था कि ये बम और हथियार यमन में आम शहरियों की हलाकतों का सबब बन सकते हैं। फिलहाल इस फैसले को तब्दील करने की कोई वजह नहीं बताई जा रही है, लेकिन ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब के भरोसे के बाद स्पेन की मौजूदा सप्लाई ने, खासतौर मौजूदा हुकूमत ने हथियार सप्लाई का फैसला किया है। इजरायली हुकूमत का फिलिस्तीनियों के खिलाफ जारहाना पॉलिसी जारी है। मकबूजा मगरबी किनारे में इजरायली अफवाज ने खान अल अहमर में एहतजाजी कैंप को ढा दिया। दरअसल इस इलाके में बद्दू बरसों से रह रहे हैं, जिसे इजरायली हुकूमत ने खाली करने का हुक्म दिया है, जिसके खिलाफ फलस्तीनी एहतजाज कर रहे हैं। इजराइल का कहना है कि ये उनकी ज़मीन है जहां पर वो बस्तियां बसाना चाहते हैं। इजरायली हुकूमत ने इस गांव में घरों को ढाना भी शुरू कर दिया है। खान अल अहमर में रह रहे बद्दुओं के ये डर सता रहा है कि कहीं इजराइल उनके गांव को ना उजाड़ दे। फ़लस्तीनी आवाम का कहना है कि उन्हें अपनी ज़मीन के दिफा का पूरा हक है। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक इंसानी कमीशन ने इजराइल हुकूमत को बस्तियां उजाड़ने से बाज रहने को कहा है।
म्यांमार की स्टेट काउंसिल आंग सांग सूकी ने कहा है कि हुकूमत रोहिंग्या मुसलमानों के बहरान को सही तरीके से संभाल सकती थी, लेकिन इसमें फौज से कुछ गलती हुई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बात करते हुए सूकी ने कहा कि रोहिंग्या बहरान की रिपोर्टिंग कर रहे राइटर के 2 सहाफियों के मुल्क के कानून के मुताबिक सजा सुनाई गई है। रोहिंग्या मसले पर बैनुल अक़वामी दबाव के बावजूद म्यांमार की स्टेट काउंसिल आंग सान सूकी के नजरियात में कोई तब्दीली देखने को नहीं मिल रही है। सूकी ने कहा है कि म्यांमार हुकूमत रखाइन के रोहिंग्या बहरान से हुकूमत बेहतर तरीके से निपट सकती थी। सूकी का इशारा 2017 में म्यांमार पुलिस और आर्मी के हाथों रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद से था। हनोई में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करने आई सूकी ने म्यांमार मिलिट्री का दिफा किया। उन्होंने कहा कि रखाइन सूबे में कई अक़लियती और ज़ाती ग्रुप हैं। ऐसे में फौज ने अपने हिसाब से हालात को बेहतर तरीके से संभालने की कोशिश की। Ways in which we, with hindsight, might think that the situation could have been handled better, but we believe that for the sake of long-term stability and security, we have to be fair to all sides. In the Rakhine, there are many small groups, ethnic groups, and religious groups, and they're not just the Muslims and the Rakhines, as seems to be the perception of much of the world. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सूकी ने रॉयटर्स के उन 2 सहाफियों के बारे में भी बात की जिन्हें रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम की रिपोर्टिंग करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। सूकी ने उनकी गिरफ्तारी पर सफाई पेश करते हुए कहा कि उन्हें सहाफी होने की वजह से नहीं बल्कि कानून तोड़ने के जुर्म में सजा सुनाई गई है। सूकी ने कहा कि वो ऊंची अदालत में अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं। It's not a matter of they were not jailed because they were journalists. They were jailed because the court has, sentence has been passed on them because the court has decided that they had broken the Official Secrets Act. So if we believe in the rule of law, they have every right to appeal the judgment and to point out why the judgment is wrong. वाज़ेह है कि रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के मामले में म्यांमार हुकूमत को बैनुल अक़वामी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर अगस्त 2017 में जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, जिसके सबब 7 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या अपनी जान बचाकर बांग्लादेश की सरहद की तरफ भागे, जहां वो अब भी कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन म्यांमार हुकूमत उन्हें वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। उधर यूरोपीय यूनियन ने आंग सांग सूकी के राइटर के सहाफियों की गिरफ्तारी पर दिए गए बयान पर सख्त तनकीद किए। यूरोपियन पार्लियामेंट से खिताब करते हुए यूरोपीय यूनियन के खारजा चीफ फेडरिका मोघेरिनी कहा कि म्यांमार के लोगों को एक ऐसे आज़ाद मुल्क की ज़रूरत है जहां प्रेस आज़ाद हो, सभी को बराबरी का हक मिले। यूरोपीय यूनियन ने राइटर के सहाफी वो लोन और कयासी ऊ की गिरफ्तारी के खिलाफ एक तजवीज़ भी पेश की, जिसमें कि इन दोनों सहाफियों को फौरन रिहा करने की मांग की गई है। People of Myanmar have asked to turn the page, to go towards a democratic system and country, and they deserve better than this. They deserve a country where journalists are free to do their job and to keep the state institutions accountable for their actions. And they deserve a country where all citizens, all of them, have the same rights, whatever their faith or their background. यूरोपीय यूनियन ने हंगरी पर जमहूरी इक़्तिदार की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। यूरोपीय यूनियन खास यूरोपीय पार्लियामेंट ने हंगरी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन करने के लिए वोट दिया है। वज़ीर आज़म ओरबान की सरकार पर इल्ज़ाम है कि उसने महाजिरों पर हमले किए। हंगरी में विक्टर ओरबान की हुकूमत के जरिए जमहूरी इदारों के खिलाफ कार्रवाई, मीडिया की आज़ादी पर हमला और अक़लियतों के हुकूक में कटौती यूरोप में भी बहस का मुद्दा है। यूरोपीय पार्लियामेंट में 2/3 से ज़्यादा मेंबरों ने हंगरी के खिलाफ कार्रवाई शुरू किए जाने के हक में वोट दिया। यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क के खिलाफ ऐसी वोटिंग पहली बार हुई। बर्तानिया के सेलिसबरी में रूस के साबिक जासूस सर्गेई स्क्रिपल और उसकी बेटी के जहर देने के मुल्जिम ने आज रूसी टीवी पर आकर अपना बयान दिया। अलेक्जेंडर पेट्रोव और रूसलोन बोशिरोफ ने कहा कि स्क्रिपल और उसकी बेटी पर हुए नर्व एजेंट हमले में उनका कोई हाथ नहीं है। इन दोनों ने इंटरव्यू में कहा कि वो एक सयाह के तौर पर बर्तानिया गए थे। वो सेलिसबरी घूमने गए थे, जहां पर वो सिर्फ चंद घंटे ही रुके। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों बर्तानिया ने रूसी जासूस सर्गेई स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया पर जानलेवा नर्व एजेंट हमला करने वाले इन 2 मुश्तबा रूसी शहरियों के नाम
और तस्वीरें जारी की थी। बरतानिया का कहना है कि ये दोनों शख्स रूसी फौज के रुकन हैं और इन्होंने ही स्क्रिपल पर हमला किया है। वहीं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि उसने बरतानिया में साबिक रूसी जासूस सरगेई स्क्रिपल को नर्व एजेंट जहर देने वाले 2 मुश्तबा शख्स की पहचान कर ली है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद जर्मनी में भी पादरियों के जरिए बच्चों की जिनसी इस्तेसाल का मामला सामने आया है। जर्मन बिशप कॉन्फ्रेंस के एक जायजे के मुताबिक 1946 से 2014 के दरमियान 1670 पादरी इस तरह के वाकयात में मुलव्वस रहे। इन 6 दहाइयों के दौरान जिनसी छेड़छाड़ का निशाना बनने वाले ज्यादातर 13 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। उधर पोप फ्रांसिस ने अमेरिकी चर्च में बड़े पैमाने पर जिनसी स्कैंडल की रोकथाम के लिए अमेरिका के कैथोलिक बिशपों से मिलने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक पोप दुनिया भर के सभी बिशप्स को अगले साल फरवरी में होने वाली कॉन्फ्रेंस में तलब करेंगे और इस कॉन्फ्रेंस में पादरियों के जिनसी इस्तेसाल और खासतौर से बच्चों की सिक्योरिटी पर बातचीत होगी। पोप के इस कदम को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें यह महसूस हुआ है कि यह गैर अखलाकी फेल आलमी तौर पर हो रहा है और अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो ये उनकी विरासत को कमतर करेगा। दुनिया को अपनी ताकत दिखाते हुए रूस का सबसे बड़ा फौजी मश्क जारी है। कोल्ड वार के बाद मिलिट्री ड्रिल वास्तोक 2018 रूस का अब तक का सबसे बड़ा फौजी मश्क है। आज इस मिलिट्री ड्रिल में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और कई फौजी अफसर शामिल हुए और फौजियों का हौसला बढ़ाया। इस मिलिट्री ड्रिल में 3 लाख फौजी शामिल हैं और इस मश्क में चीन और मंगोलिया की फौजी भी हिस्सा ले रही हैं। इस फौजी मश्क में 36,000 मिलिट्री व्हीकल्स, 1,000 प्लेन और 80 वॉरशिप शामिल किए गए हैं। रूस की अफवाज उस वक्त फौजी मश्क कर रही है जब मॉस्को और नाटो के बीच टेंशन का दौर चल रहा है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में एक शख्स ने फायरिंग करके कम से कम 5 अफराद को हलाक कर दिया। मकामी पुलिस के मुताबिक ये हलाकतें बाज़ाहिर खानदानी झगड़े का नतीजा दिखाई देती हैं। पुलिस का कहना है कि हमलावर ने अपनी बीवी समेत 5 लोगों को गोली मारकर हलाक कर दिया, बाद में खुद को भी गोली मार ली। हमलावर ने पहले अपनी बीवी और एक ट्रक कंपनी में काम करने वाले शख्स को मारा, उसके बाद उसने कंपनी के एक दीगर शख्स को गोली मार दी, फिर एक घर में घुसकर 2 लोगों को मार दिया। हमलावर ने इन 5 अफराद को मुख्तलिफ मकामात पर गोली मारी। आपको बता दें कि अमेरिका में गन कल्चर की वजह से इस तरह की वारदातों में इजाफा देखने को मिल रहा है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में हैजा फैल गया है, जिसकी वजह से अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। जराये के मुताबिक गंदा पानी पीने से 2000 से ज्यादा लोग बीमार हैं। हालात को देखते हुए सरकार ने हैजा इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। हैजे का ये कहर बुदिरीरो और ग्लेन व्यू इलाके में फैला हुआ है, जहां पर खुले कुओं और बोरवेल के पानी को पीकर लोग बीमार हो रहे हैं। महकमा सेहत ने हरारे में इमरजेंसी का ऐलान करते हुए लोगों को गंदा पानी पीने और आलूदा खाना खाने से मना किया है। वजीर सेहत ने बताया कि मुतासरा इलाकों में गोश्त और मछली के फरोख्त पर भी पाबंदी लगा दी गई है और सरकारी स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जी सलाम।